السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، پچھلے 3 دنوں سے جو سی ای او براڈ شیٹ LLC والے صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو چل رہا ہے کیوے ماسوے کا، اور جو ایک تھرل مچی ہوئی ہے، کل بھی ہم نے سنا اس کا ذکر ہوتا رہا پارلیمنٹ میں یعنی کہ سینٹ میں۔ آج پرویز رشید صاحب نے بھی بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں تو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے، یہ کمپنی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی طرف نہیں دیکھ سکتی، ان کو یہ اپنی پراپرٹی نہیں بنا سکتی کیونکہ یہ اب کیس ہار چکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پراپرٹی ہے ایون فیلڈ کی، یہ صرف اور صرف میاں نواز شریف خاندان کی ہے، شریف خاندان کی ہے، تو اس کی طرف نظریں مت اٹھائیں۔ تو اس پہ پرویز رشید صاحب نے کہا، سینیٹر آنریبل سینیٹر پرویز رشید صاحب PMLN کے بہت ریسپیکٹڈ سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں مشرف کہہ گیا تھا کہ کمپنی ناکام ہو گئی اور کوئی اثاثے تلاش نہیں کر سکے، کمپنی عدالت میں جا کر ایون فیلڈ انہیں دے دیں کیونکہ حکومت نے ان کو پیسے نہیں دیے، یعنی کہ پاکستانی حکومت نے اگر ان کو براڈ شیٹ کو پیسے نہیں دیے تو وہ جا کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ قبضہ کر لیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، حالانکہ کیوے ماسوے کا یہ خیال ہے کہ جناب ہم نے خود وڈرا کیا تھا، وہ ہم آپ کو سنوائیں گے بھی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا تو پھر ہم نے یہ کیس خود وڈرا کر لیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو پرسو نہیں کیا، اور ورنہ کچھ چیزیں کچھ اور مختلف بھی ہو سکتی تھیں۔ کیوے ماسوے کا خیال تھا کہ جناب کیونکہ مشرف نے ہمیں 2003 کے بعد 3 سے پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے پر میں نے الیکشن کروائے ہیں اور الیکشن میں وہی کرکس واپس قومی اسمبلی میں آ گئے جن کے خلاف سارے معاملہ چل رہے تھے، تو اب چپ کر جائیں، ٹھنڈ پڑ رہنے دیں۔ اور کیونکہ NRO بھی کر چکے ہوئے تھے مشرف صاحب، پھر دوسرا NRO 2007 میں بھی کیا، یہ ساری باتیں اور بہت ہی دلچسپ صورتحال رہی کہ کیا واقعی جو ہے اس انٹرویو نے جو تھرتھلی مچائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کیا نواز شریف خاندان کی یا زرداری خاندان کی، اور آج کا جو لاسٹ اینڈ فائنل انٹرویو عرفان ہاشمی نے کیا اس میں شیرپاؤ صاحب کا بھی نام آ گیا، جس میں جو ہیں ہمارے کیوے ماسوے صاحب، کاوے ماسوے، انہوں نے کہا کہ جناب جرزی میں جو ایک آئیلینڈ ہے، جرزی آئیلینڈز بہت مشہور جگہ ہے جہاں پہ پیسے پارک ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی لوٹے ہوئے پیسے وہاں پہ پارک ہوتے ہیں، اور انہوں نے براڈ شیٹ نے بتایا کہ جناب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، یہ شیرپاؤ صاحب کے پیسے ہیں، یہ اکاؤنٹس ہیں، یہ ہم نے سیز بھی کرا دیے، تو آپ جرزی گورنمنٹ کو کہہ کے یہ پیسے ریکور کر لیں۔ تو یہ ہمیں CEO براڈ شیٹ بتا رہے ہیں کہ جناب گورنمنٹ نے وہ کیس ہی بند کروا دیا، اور نہ سوا یہ بلکہ ان کو انٹیریئر منسٹر بھی بنا دیا بعد میں۔ تو یہ بڑے دلچسپ معاملات ہیں کہ اربوں روپے جو ہیں وہ 2017 میں آئیڈینٹیفائی کرتی ہے براڈ شیٹ۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ 2003 میں اگر معاملات ان کے ختم ہو گئے اور کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو 2017 میں بھی یہ کیا پرسو کر رہے تھے، کس کے کہنے پہ کر رہے تھے، یہ معاملات کیسے چل رہے تھے، اور پھر 2017 میں وہ پھر دوبارہ پاکستانی حکومت کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ اربوں ڈالر روپے سعودی عرب سے لنڈن کے کسی ایک اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں، کچھ اکاؤنٹس میں، تو آپ اس پر بھی نظر ڈالیں۔ تو پھر ماسوائے کیوے صاحب جو ہیں، کاوے ماسوے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو کوئی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ملا۔ 2017 میں یقیناً میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ کن کے ہو سکتے ہیں سعودی عرب میں، اور سعودی عرب سے برطانیہ کن کے پیسے جا سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے جو اس وقت سینسیشن پھیلائی ہوئی ہے جنہوں نے۔ عرفان ہاشمی صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، بہت سارے ٹی وی چینلز پہ کام کر چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ انٹرویو کیے ہیں CEO براڈ شیٹ کے۔ بہت بہت شکریہ عرفان، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں اس وقت، نیوز چینلز پر بھی، اخبارات میں بھی آ رہے ہیں، ایڈیٹوریل بھی چھپ رہے ہیں، آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے فلور پر بھی آج کل بھی ہم نے سنا اور آج پھر پرویز رشید صاحب نے بڑی دلچسپ گفتگو کی۔ تو یہ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں، اور پھر ایک امپورٹنٹ اور بات عرفان
کہ آپ کے اس انٹرویو کی بازگشت جو ہے آج کابینہ میں بھی سنائی گئی اور کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب تو انٹرسٹڈ ہیں کہ جتنی باتیں سی ای او براڈ شیٹ نے کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دوبارہ تمام کیسز کو پرسو کیا جائے، لیکن کابینہ کا ایک جنرل فیصلہ تھا کہ جی پہلے اس پہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور پھر اس کو وہ اینالائز کر کے ان چیزوں کو دیکھ کے پھر اس کے اوپر مزید آگے چلا جائے۔ پہلا سوال کہ کیا یہ جو ہم پہ فائن ہوا ہے یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں اگر ہم دوبارہ براڈ شیٹ کے ساتھ کوئی انگیج کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کچھ ریلیکسیشن مل سکتی ہے پاکستانی حکومت کو، کیونکہ ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے لوٹا ہوا ہے اور وہ باہر پڑا ہوا ہے اور ہمارے اوپر قرضے بھی بہت زیادہ ہیں، تو کہیں پہ کوئی ہیومن اینگل نظر آیا یا وہ باقاعدہ ایک کارپوریٹ اینٹی ہے، ایک بزنس اینٹی ہے جس نے صرف پیسہ بنانا ہے؟ کیا کہتے ہیں عرفان؟ تھینک یو سمیر، آپ نے کیا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا اس میں ایسی کوئی چیز موجود ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے اور اسے باہر سے اتنا پیسہ چلا جانا، یقیناً اس کے اوپر بطور پاکستان کی میرا بھی یہ اینگل تھا جس کو بنیاد نہ میں نے کبھی مشاور سے رابطہ کیا اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان اتنی بڑی رقم ہم نے آپ کو ایک فائن ہوا ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے، اس میں جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں آپ ان سے وصول کریں چونکہ 20% شیئر کی بات تھی۔ اچھا، کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف دا انٹرویو، انہوں نے مجھ سے پہلے کیا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی عوام کو میں واپس دے دوں گا، گورنمنٹ آف پاکستان ٹیبل پر آئے مجھ سے بات کرے، کانٹریکٹ نیا کرے، I will forget about all the money which was obviously by the Anthony Evans جو جج ہیں آرڈر میں پیسہ پاکستان کی عوام کو دے دوں گا۔ اور انہوں نے بارہا کہا کہ پاکستان کے اندر سکول کھل سکتے تھے، دوائیاں خریدی جا سکتی تھی، فلٹریشن پلانٹ لگ سکتے تھے، بہت تھا اس پیسے، لیکن انفارچونیٹلی جو جس طرح تک پہنچا ہے اس میں پاکستان کی جو پریویس گورنمنٹ کی ہے، نیب نے اپنا اسے کرنا چاہیے تھا، لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی تھی، انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یہ پیسہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ 2016 کے اندر ضمیر جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ گئے نواز شریف کی گورنمنٹ کو کہا کہ جناب یہ پیسہ آپ ہمیں دیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس پہ اپیل کریں گے۔ دیٹ از آن دا ریکارڈ جو انہوں نے ہمارے سے انفارمیشن شیئر کی۔ گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن، he is ready to give their money back to Pakistan۔ اب اس میں جتنے مرضی اینگل نکلوا لیں گے جناب، شاید وہ چاہتے ہیں کہ نیا کانٹریکٹ لیا جائے اور پھر پاکستان کی عوام کو، حکومت کو whatever، لیکن this is what he said and he pledged that on camera is ready to give this money back to Pakistan۔ صحیح عرفان، ایک تو یہ کہ آج پرویز رشید نے بھی، جس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کاوے ماسوے نے بھی یہی بات کی کہ جی یہ پیسہ میں واپس دینے کے لیے تیار ہوں، حکومت میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، ہم لوگ اس کو مزید پرسو بھی کر سکتے ہیں، لوٹا ہوا پیسہ ہم مزید ریکور بھی کر سکتے ہیں، جس کا یقیناً ایگریمنٹ کے تحت 20% وہ رکھنے کے حقدار ہیں اگر دوبارہ ری نیگوشیٹ ہوتا ہے اور انہی ٹرمز پہ ہوتا ہے، جو کہ فاروق آدم صاحب جو کہ اس وقت سینئر پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے، جنہوں نے سائن کیا تھا آن بیہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ نیب دین، لیکن آج پرویز رشید صاحب بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی مشرف نے تو خود کہہ دیا تھا کہ یہ کمپنی بینک کرپٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ کچھ ریکور نہیں کر سکی اور اس وجہ سے ہم نے ان سے جو ہے وہ کانٹریکٹ ختم کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اوپر سے افسوس اس بات کا کہ 700 کروڑ روپے اس غریب عوام کے جو ٹیکس پیئرز پیسہ ہے وہ اس میں لگا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پہلے اگر آپ کو میں سنوا دوں کہ جو پرویز رشید صاحب نے آج گفتگو کی وہ ذرا سن لیں۔ جی عرفان، اب تھوڑا سا آپ بھی اس کو ایکسپلین کر دیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عجیب سی کنفیوژن ہے، کیونکہ پہلے وہ اپنے ایڈوانٹیج پہ لے رہے تھے جو پی ایم ایل این والے سارے کے جی دیکھیں، اور اب اس انٹرویو کے بعد وہ پریشان بھی ہو گئے اور شاید آپ پر الزامات بھی یہ لگ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹائمنگ دیکھیں، کس ٹائم پہ آ کے یہ انٹرویو کیا ہے، یہ جان بوجھ کر پھر گورنمنٹ کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ابھی فیصلہ آیا ہے اس عدالت کا جس کے بعد you thought کہ this is an appropriate time to interview the CEO of Broadsheet LLC۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ
I give them the challenge. I challenge them. Come and you can stand here और मुझे ये बात कहें कि this was a planted interview. I was listening to one of the programs. अभी किसी रिपोर्ट कार्ड में क्रेजी शाह, I don't know the lady who is she is. उन्होंने कहा कि जनाब टाइमिंग देखें बड़ी है. लेकिन खुदा के लिए यार आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पे बिलीव क्यों नहीं रखते? आपने क्यों समझते हैं कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं पैदा हो सकते या पाकिस्तान में फ्रीलांस जर्नलिज्म नहीं हो सकती? हमारी जो टाइमिंग बड़ी परफेक्ट इसलिए थी कि इसमें हमको दुनिया को पता चल रही था कि दूसरी तरफ लोग क्या सोच रहे हैं. आपने वन साइडेड स्टोरी की ना. हाउ मेनी टाइम्स कभी मसावी इज ऑन एनी टेलीविजन इन पाकिस्तान और एनी न्यूज़पेपर अपार्ट फ्रॉम कि आज ब्रॉडशीट में, नेवर एवर. तो ये भी समझे ना कि वो कौन सी ताकतें हैं जिनका बारहा कहा जाता है कि जनाब इनको कंट्रोल किया जाता है. किसी बंदे में अगर हिम्मत है तो दुनिया के अंदर आकर इस जमीन पे मैंने ये किसी के कहने पे इंटरव्यू आई टेक दैट पर्सन टू द क्लीनर्स श्योर, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे बात नहीं कर सकते और उन्हें भी पता है कि हमारा जो ये इंडिपेंडेंट इंटरव्यू जो किया है और सर ये अब इनको जवाब देना पड़ेगा. कभी मुसावी तो ने आपकी इस इंटरव्यू के दौरान 3 कॉल्स अभी जो मैंने डिक्लाइन की हैं बिकॉज वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द लिस्ट ऑफ 200 पीपल राइट नाउ और ये 200 नाम मुझसे हम बहुत जल्द क्लियर भी कर देंगे. वो 200 नाम कौन से हैं और वो नाम आ भी रहे हैं. और ये जो इंटरव्यू आपने कहा कि दैट वाज द लास्ट, दैट वाज नॉट एक्चुअली द लास्ट, क्योंकि रात को जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी दिस वाज द थर्ड लास्ट. हमने रात को दोबारा इंटरव्यू किया है. जो लास्ट पार्ट है उस पूरे इंटरव्यू का वो अभी आज रात को अपलोड हो जाएगा. उसको सुनने की जरूरत है कि उसमें कितने इंकशाफात किए गए हैं. तो ये रात का मैंने दोबारा इंटरव्यू किया था जिसमें हुसैन नवाज की बात का काउंटर किया गया है. अभी मुसावी को जो कर रहे हैं, जिन लोगों से प्राइवेट कॉलर आईडी से फोन किए जा रहे हैं कि हम आपको डेफेमेशन और पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं कि उन्हें आई डोंट केयर बट आई हैव टू सेड. मैंने कहा है आपका सवाल कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों की जा रही है. देखिए सर, यहाँ पर जिस किस्म की जर्नलिज्म होती है वो आप पूरी दुनिया के सामने है कि उसमें बताने की जरूरत नहीं है. आप अपनी मर्जी का सवाल करते हैं, मर्जी का जवाब आ जाता है. कुछ दिनों पहले जब इसको इस पूरे फैसले को अपने हक में इस्तेमाल किया गया उस वक्त तो यहाँ पर शादियाने बजाए जा रहे थे और फतह और मिठाइयां और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था कि हमें सुरखरू हुए और तमाम ट्विटर अकाउंट्स बंद हैं. ये फैसला इतना बड़ा इल्जाम, एक शख्स बर्तानिया में बैठकर ये कहता है, किसी को क्रूक कहना और किसी के ऊपर, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग इन इंग्लैंड. आप किसी को इस तरह ये अनअटेंडेड बात नहीं जा सकती. कभी मुसावी ने रात भी कहा, आज सुबह भी मेरी बात हुई, ही इज ओपन. वो कहता है कि जनाब मुझे अदालत में उठाकर ले जाए. और मैं आपको एक बात बता दूं, फील्ड के हवाले से जो आप बात कर रहे थे उन्होंने ये भी ऑफर रखी है कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट करें, वील गो आफ्टर द फील्ड अपार्टमेंट्स और हम पाकिस्तान का अगर पैसा जो है और हमारा जो सबूत है हम उसके ऊपर मजीद काम करेंगे बिकॉज वी हैव द फैसिलिटी द कैपेसिटी. 17 साल पहले अगर हम कुछ चीजें निकाल के हुकूमत को दे सकते हैं तो 17 साल बाद टेक्नोलॉजी भी कहाँ पहुंच गई है, बेटर फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड वी आर मोर देन कैपेबल. ओके मतलब वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें और कहीं पे एसेट्स ज्यादा नजर आ रहे थे सो वी विथड्रू दैट क्लेम और इसमें कोई विन विन सिचुएशन नहीं थी शरीफ खानदान के लिए. इज इट सो? नहीं, वो ये कह रहे थे कि क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास कैपेसिटी भी है. मैंने उनसे सवाल किया था कि आर यू रेडी टू the government of Pakistan. Yes, I'm ready. नहीं वो बात में समझ नहीं. मेरा ये मतलब मैं जो पूछ रहा हूं जो कि जिसपे वो शादियाने बजा रहे हैं. आज भी परवेज रशीद साहब ने, मैंने आपको सुनवाया कि उन्होंने कहा कि जी एवनफील्ड में जो है वो उनका क्लेम जो है वो जीरो हो गया और अदालत ने कहा कि आपका क्लेम नहीं हो सकता. तो जो सीईओ ब्रॉडशीट कह रहे हैं कावी मासवी के जनाब हमने इस एवनफील्ड वाले इशू पर हमने विड्रू कर लिया, हालांकि हमारे पास सब एविडेंस था, सब कुछ मौजूद थे, बिकॉज हमारे पास कोई बड़ा कैशे था जिसके तरफ हम जा रहे थे. इज इट सो? अच्छा, उन्होंने जो बात कही थी इस तरह नहीं, उन्होंने ये जरूर कहा कि 2016 के अंदर $1 बिलियन एक अकाउंट में ट्रांसफर हुए. मैंने फिर उनसे सवाल किया कि 2016 रेफरिंग 2016 में कहा रेफरिंग टू द एंड हुज गवर्नमेंट वाज दैट टाइम. उन्होंने कहा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, दैट्स ऑल ही सेड. ओके, और फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने नाम डायरेक्ट नहीं लिया कि इनका अकाउंट था या क्या था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे पास
ये जो इनकी इरादे हैं, जब मैंने पूछा सवाल के यूके में, नॉट यूके, ग्लोबली, दैट्स अ वर्ड ही इन पर्टिकुलर यूज, तो अनएक्सप्लेन्ड है, साइन नहीं कर सकते, और उसकी एक्सप्लेनेशन होती है कि ये पैसे आपके पास कहां से आए. दीज आर द वर्ड्स ही यूज्ड. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इरफान, आप हमारे साथ रहिएगा, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का. नाज़रीन, मजीद भी बातें हैं जहां पे रेपुटेशन की बात आई. वो बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जब इरफान हाशमी ने सीईओ ब्रॉडशीट से कहा कि जी आपने ये जो इंटरव्यू दिया है, आप इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर रेपुटेशन खराब कर रहे हैं और आपको ये अदालत में लेकर जाएंगे PMLN वाले या शरीफ खानदान वाले, तो उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, उस पर भी बात करेंगे. अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. नाज़रीन, इरफान हाशमी जिन्होंने CEO ब्रॉडशीट LLC कावी मासवी का इंटरव्यू किया, 3 इंटरव्यू कर चुके हैं और अभी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताया है कि एक फाइनल इंटरव्यू शायद और भी आएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें मज़ीद आपको सुनने को मिलेंगी, इंकशाफात आएंगे. और अभी ब्रेक के दौरान भी शायद कावी मासवी उनको फ़ोन कर रहे थे, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे अगर कोई हमारे साथ कुछ शेयर कर सकें, एनीथिंग ब्रेकिंग, बिकॉज अभी तक उनको, कावी मासवी को बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि हम आपको अदालत में भी लेकर जाएंगे. इरफान, मैं ज़रा एक जस्ट फॉर द क्लैरिटी, जो परवेज़ रशीद साहब ने एवनफील्ड के हवाले से बात की है, वो ज़रा आप दोबारा सुन लें, और फिर जो इट्स कंप्लीट स्पिन कावी मासवी, वो क्यों कह रहे हैं कावी मासवी के इट्स कंप्लीट स्पिन, जो कि हुसैन नवाज के हवाले से बात की और वही परवेज़ रशीद यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो ज़रा सुन लें दोनों, फिर मुझे आपका उस पर कमेंट भी चाहिए. जी इरफान, इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी से हम जानना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि ये स्पिन जो की है, हुसैन नवाज की भी बात जो उन्होंने की, वो उन्होंने उसी का जवाब दिया. आपने क्वेश्चन किया कि हुसैन नवाज ने ये स्पिन देने की कोशिश की है, तो एक्चुअल केस बनता क्या है कि अभी भी स्टिल अगर पाकिस्तान हुकूमत चाहे और ब्रॉडशीट को एंगेज करे या किसी और को, तो कैन वी स्टिल परस्यू अगेंस्ट एवनफील्ड? They can do that. Obviously, evidences जब भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होंगे या कोई भी शख्स एविडेंसेस तक पहुंच जाता है, तो उसको तो टाइम बाद नहीं होता. जमीर, ये अगर बात 17 साल बाद इस तरह खुल सकती है, जिस केस की हमने पहले हकीकत कुछ और थी, 3 साल जो इब्तदाई थे उसमें मुशर्रफ साहब की जो गुफ्तगू होती रही वो कुछ और थी. 17 साल बाद मैं जब एक शख्स को अप्रोच करता हूँ और वो मुझे बताता है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर मुशर्रफ साहब आए और उनकी मेरी क्या यहाँ पर जो मुकालमा हुआ वो क्या था, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो इट्स ऑन रिकॉर्ड नाउ, इट्स एन ओपन ट्रूथ. वो कहते हैं कि जनाब क्या हुआ, यू हायर्ड अस मिस्टर मुशर्रफ, व्हाट हैपेंड, एंड उस पे उन्होंने जवाब दिया कि जनाब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट. लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, एंड इन फ्यू डेज आई एम गोइंग टू रिलीज अनदर इंटरव्यू जिसमें पाकिस्तान के बड़े मोतबर लोग हैं जिनको बकायदा कांटेक्ट किया जाता रहा, लिस्टें मिलती रही, और ये लोकल बॉडीज इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि जनाब इसका भी नाम निकाल दें, इसका ये सिलसिला उस वक्त शुरू हो गया था बिकॉज मुशर्रफ साहब चाहते थे कि उनका पॉलिटिकल फेस पाकिस्तान के ऊपर आए और वो एक अपने आप को पॉलिटिकली जो है वो मनवाना चाहते थे. उनकी एंट्री, आपको पता ही है कि रेफरेंडम हुआ, फिर काफ लीग बनती है, क्या क्या कुछ नहीं हुआ. इरफान वेरी इंटरेस्टिंग एक चीज आपने कहा कि नॉट ओनली, मतलब इलेक्शन तो हो चुके हुए थे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, इवन फॉर द लोकल बॉडीज इलेक्शंस जिनमें जिन लोगों के कोई नाम थे उनके लिए भी कहा गया कि इनके भी नाम निकाल दें. Yes, at the time of local bodies election, and I was shocked to hear all that. So inshallah, in few days time, I'm releasing another interview, and that will be really interesting to watch. अच्छा, चलें, मुझे एक चीज जो समझ नहीं आ रही कि समर ऑफ 2017 में बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो आइडेंटिफाई करते हैं कि सऊदी अरब से मूव करते हैं और लंदन में आते हैं और वो हुकूमत को बताती है, पर लेकिन एक खामोशी है उसमें. Why would after 2003 in 2000 summer of 2017 ब्रॉडशीट जो है वो तकरीबन 14 साल बाद जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, वो क्यों पाकिस्तान ऑफ गवर्नमेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाई? बिकॉज क्योंकि उनका अपना पैसा फंसा हुआ था, वो रिकवर करना चाहते थे जो 20% उनको मिलना था. द केस वाज इन द कोर्ट. आई थिंक दे हैव सीन, इन्होंने दोनों गवर्नमेंट्स के साथ गुफ्तगू करके और देख भी लिया
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास भी गए, ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के पास भी गए कि जनाब हमारा पैसा बनता है, अदरवाइज वी हैव टू गो इन आर्बिट्रेशन, और जो जिस तरह पैसा इन्होंने वसूल किया, सही। अब पैसा वसूल वो कर चुके हैं ज़मीर, और अब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कभी मुसावी ने रेफरेंसेस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे इमरान खान, तो उनकी एक दो दफा मुलाकात एक खाने पे हो चुकी है, और वो बिलीव करते हैं कि उनके अपने ऑक्सफोर्ड फेलो उनकी गवर्नमेंट पे भी बिलीव करते हैं कि वो डिलीवर, हाँ अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो पाकिस्तान के हालात हैं उसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकती है। लेकिन नैब के ऊपर फिर भी उनके सवाल, चले नैब के ऊपर बिल्कुल सही, उन्होंने कहा डाउट्स हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और इमरान साहब के ऊपर उनका एक ट्रस्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये पूछना था कि 2017 में क्यों बताते हैं नवाज शरीफ को कि नोइंगली कि उन्हीं का पैसा हो सकता है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगा जो सऊदी अरब से लंदन किसी बैंक में आया है, और वो उन्हीं को बता रहे हैं कि भाई इतना पैसा आया है, वी आर टेलिंग यू, तो यू कैन कीप आई ऑन दैट, और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये भी इल गॉटन मनी है। जी, एक वफ्द जो है अक्टूबर 2018 में आया, और फिर उन्होंने उसका हवाला भी दिया, मैं पढ़ भी देता हूं कि जब ये लोग बात करते हैं कि नैब साफ और शफाफ अदारा है और इसका माजी से कुछ लेना देना नहीं, आप उनसे सवाल पूछें कि इस इंफॉर्मेशन का जो मिस्टर मुसावी ने आपको दी थी इस $1 बिलियन वाले अकाउंट की, इसने मुआहदे का क्या हुआ, और फिर उन्होंने एक शख्स का भी जिक्र किया जो उनसे मुलाकात करता है, तो दैट हैपेंड समवेयर इन अक्टूबर 2018। नहीं, नाउ आई एम गोइंग बैक टू द जो सऊदी अरब से मूव हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि समर ऑफ 2016 और 17, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो उस पॉइंट पे वो क्यों बताना चाह रहे थे when Broadsheet LLC was in court against the government of Pakistan for the recovery of their dues? देखें वो ये एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू बी स्टिक टू द लाइन बिल्कुल कभी मुसाफी हैज यूज्ड। वो ये कहते हैं कि रकम 2016 में सऊदी अरब के, जिसकी आपने बात की, दिसंबर ऑफ 2016 एक अकाउंट में मुंतकिल की गई जी, जिसके हवाले से मैंने हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया था। उन्होंने एक उंगली भी नहीं हिलाई उस वक्त, मुझसे इस फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए, डील के लिए राब्ते किए जाते रहे। So these are the words which the gentleman has used. Exactly. डील को रोकने के लिए बिल्कुल सही है, बट माय क्वेश्चन इज इरफान कि ये जानना मैं ये चाह रहा हूं कि एलएलसी ने क्यों ये जो है वो हेल्प आउट करने की कोशिश की गवर्नमेंट को, नोइंगली व्हेन दे वर इन आर्बिट्रेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो उन्होंने ड्यूज का क्लेम दिया था कि भी हमारे इतने पैसे बनते हैं जो आपने हमें देने हैं, तो व्हाई वुड ब्रॉडशीट जो है वो परसू करेगी इन अकाउंट्स को और फिर हुकूमत पाकिस्तान को भी बताएगी? बिल्कुल आपने सही कहा। लेट मी पुट दिस क्वेश्चन टू कवी मुसावी। मेरी आज का जो इंटरव्यू है उसमें मैं जरूर सवाल करूंगा, क्योंकि अगर 2003 में, यू राइटली सेड कि अगर 2003 में ये टर्मिनेट हो गया और मामला खत्म हो गया जिसके बाद ये गए, तो व्हाई इन 2016 क्या जरूरत पड़ी? और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लोगों के साथ राब्ते में थे, नैब के, विच इज माई ओन पर्सनल असेसमेंट, राब्ते में थे और उनको ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे उन अकाउंट्स के बारे में जो जिनके बारे में इन्होंने तलाश की थी, और किससे राब्ता हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन व्हाट हैपेंड इन 2016 एंड यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग द गवर्नमेंट, जिसके और उसी से आप डील कर रहे हैं और उसी से आप बात कर रहे हैं, तो 2016 में क्या हुआ? यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट दिस क्वेश्चन। लेट मी पुट दिस टू कभी मुसावी एंड गेट द राइट आंसर, बिकॉज ये उसका जवाब कभी मुसावी हमें बेहतर दे सकते हैं। क्योंकि 2003 में अगर जी बिल्कुल, वेरी राइट। अच्छा, 2012 में गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती है, और बाय 2012 हालात पीपल्स पार्टी, और यू नो इट वेरी वेल, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान काफी कशीदा हो जाते हैं, जिन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहनकर अदालत में जा रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के पास, और उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ का नेफ्यू अंजुम डार जो है वो $25 मिलियन की ऑफर करता है 2012 में कावी मासवी साहब को। तो उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी, उस वक्त उन्होंने अप्रोच नहीं किया पीपल्स पार्टी को, जी देखें वी हैव फाउंड दिस थिंग और इसकी वजह से हमारे पीछे पीएमएलएन वाले $25 मिलियन हमें रिश्वत ऑफर कर रहे हैं? देखिए, ये जो कैरेक्टर जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन पहले दिन से मेरे पास है। सही। और जो नाम लिया गया
जिन साहब का ये इंफॉर्मेशन भी थी, अंजुम डार, ठीक है, बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी। एंड ऑब्वियसली मैंने कल तस्वीर भेजी है जिसपे उन्होंने उसे अप्रूव किया और बताया कि जनाब यही शख्स मुझे मिलने आया था। आपने उसके बाद गलबन ARY के ऊपर भी ये देखा है, वो तस्वीर चल रही थी, और फिर उसके बाद एक कहीं और जगह लोगों ने भी उसको इस साथ शेयर किया है, क्योंकि जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है उसके हवाले से हुसैन नवाज का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो ये कहते हैं कि मेरे ख़ानदान के कितने अफराद हैं पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, और कभी मुसावी जो हैं अगर वो इन्वेस्टिगेटर हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये फैमिली कौन है और इनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो आई थिंक कि कहीं पर ये जो सवालात कुछ आपके जो ऐसे हैं, वैसे इरफान एक्सटेंडेड फैमिली व्हेन यू हैव गॉट लाइक यू नो आपके समधी इसाक डार हैं, तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली डार क्लैन में तो चली गई ना, तो हो सकते हैं अंजुम डार उनके हों। अच्छा, जरा क्विकली मैं चाहूंगा कि ये जो वाकया शेरपाव साहब के हवाले से इत्तफाक से मतलब पनामा के जो पेपर्स आए थे उनमें भी मुझे कुछ याद नहीं पड़ता कि शेरपाव साहब का भी नाम आया हो कि उनके भी ऑफशोर अकाउंट्स थे। अब जर्सी आइलैंड्स में उनका निकलता है, और वो उस वक्त ये दिस इज बिफोर 2003 ना, 2003 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले की बात बता रहे थे ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जब ये खबर ओपन अप हो रही है तो इसके बहुत सारे ज़मीनी डायनामिक्स हैं। अब बहुत सारे सवालात कभी मुसावी से भी पूछने पड़ेंगे हमें, तो जनाब कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या थी जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इस्लामाबाद में जहां पे आप बैठे हुए हैं, आप शेरपाव साहब को ढूंढें, उनका भी रिएक्शन आना चाहिए। उनके जो नंबर हैं वो इस वक्त मुकम्मल बंद हैं। कुछ लोगों को मैंने कोशिश की है, वो राब्ता नहीं कर रहे, ना बता रहे हैं। इट मीन्स के कुछ ना कुछ हुआ। देखें, जो अगर कोई शख्स मेरे पे इल्जाम लगाता, आपने शायद सोशल मीडिया के ऊपर ज़मीर इस वक्त जो कैंपेन चल रही है वहां पर कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि इरफान हाशमी ने जो इंटरव्यू किया, वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जो इंटरव्यू हुआ यार किसी में हिम्मत है तो कुछ, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ ना कि चैलेंज कर रहा हूँ, तो जो सच है वो कौम के सामने है। सच अगर ये झूठ है तो आप अदालतें हैं, यहाँ पे जाके कभी मुसावी को कभी मुसावी। अब ये जो आपके ऊपर जो पूछा जा रहा है, मुझे एक बात बताएं, मतलब आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर फॉर वंस एंड फाइनल कि आपने कोई एडिटिंग की है इन तीनों इंटरव्यूज में जो अब तक आए हैं? हैव यू? नहीं जी, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, लेकिन कल रात 2 इंटरव्यूज हुए थे और वो मेरे पास सेव पड़े हुए हैं। एक हमने अपलोड कर दिया जो आपने भी चलाया भी है, और जो चौथा एक इंटरव्यू था वो 8 मिनट का एक पीस है जो मैंने नहीं चलाया फॉर सम रीजंस, और उसको भी हम टाइम पे आने पे रिलीज करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कैफे रोक कि वो कौन शख्स थे जो बिल्डिंग गए थे। आई कैन नॉट से मोर देन दैट। ओके, इरफान, अगर आप पे प्रेशर आता है कहीं से, बट यू आर सिटिंग इन लंदन, you won't take or buy any pressure and you would just release it, or it's sensitivity किसी और नौयत की है, it's like matter of national security or something like that? नहीं सर, it's not a matter of national security, but इसमें कुछ नाम ऐसे हैं कि हमें थोड़ा सा उसकी लीगल implications देखना पड़ेंगी, क्योंकि in England it's something different, and unless and I have seen some records by myself, और अगर एक बंदा ऐसी बात कर रहा है और वो जो शख्स उनको वहां जाके मिलता है और वो क्या कहता है, दैट इज इट्स अनदर बॉम्बशेल। ये बहुत हैरानकुन बात है, और वो that will be an eye opener and there will be a whistleblower. Trust me, it's not an ordinary interview. Okay, but आप मतलब after getting the clearance from your lawyers, so then it would be made public. Yes, I need to get legal opinion on that. Okay. और उसके बाद फिर हम इसको जरूर डेफिनेटली रिलीज करेंगे। सही। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हम करना चाहते हैं ज़मीर, ये उसका एक हिस्सा है। मुझे किसी ने engage नहीं किया, मुझे किसी ने Irfan, knowing you for a long time, I know, and मतलब I'm absolutely sure, and I think you should enjoy the criticism you are facing. ये एक मजेदार चीज है, इसको enjoy भी। Let me say this thing, मैं हैरान हूँ, मुनीफ फारूक को सिटिंग देयर, वो हमारे सामने मुनीफ फारूक का कैरियर जो है वो बना है, वो किस तरह दुनिया टीवी में he started his career, he was sitting there. Yeah. He should have said कि I know Irfan from the court days. अबसार आलम was there. अलीना फारूक को टैलेंट हंट में मैंने और रहमान अजहर ने तैयार किया था। अलीना फारूक को जल्सों में
क्रेनों पे बिठाना मेरा काम था. She should have said that. Yeah, true, लेकिन वो true. I don't know why the people are saying that. Yeah, but chale, they are shy of praising. People are, I don't know why, you're right, people are shy of praising, their fellows, जिनके साथ उन्होंने closely काम किया हुआ है. एक चीज जरा मैं आपका question और फिर कावी मासवी का जवाब वो जरा सुनवाना चाहता हूं, बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग, और फिर मुझे उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी आप बताएंगे, क्योंकि मैं तो मतलब कोई इतनी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं जानता. क्या सवाल था इरफान हाशमी का और जवाब था रेपुटेशन के हवाले से, जरा प्लीज सुनवाइएगा. ये बताइए क्या होती है रेपुटेशन. आपने डिफेम करने का पूछा, उन्होंने रेपुटेशन का जिक्र कर दिया. मैं देख रहा था, गूगल कर रहा था, तो उसमें 3 मुझे मतलब मिले रेपुटेशन के. एक साख, दूसरा शान और तीसरा शोहरत. तो मावी कासवी क्या सॉरी कावी मासवी क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? वो ये कहते हैं कि ये एक लतीफा है, और उन्होंने कहा कि जाने तो जाएं. और आप जो कह रही हैं कि ये इंटरव्यू तो सीरियस था जिसने आपने खत्म किया है, और ये शख्स इज्जत मैंने किसी की नहीं उछाली या किसी की शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचाया. शोहरत उस शख्स की उसको नुकसान पहुंचाया जाता है जिसकी कोई अच्छी शोहरत हो. दिस इज व्हाट ही सेड. I think these are big words. It's not a joke. वो शायद लतीफा उनको I लग रहा understand, था. Irfan, he didn't mince any words. He didn't mince any words. जब आपने मतलब मुशर्रफ के हवाले से जब उन्होंने कहा तो he said कि there were many crooks who are back in the National Assembly. He didn't mince the words because ना मतलब मैं ये नहीं जानता कि आज भी उनमें से कोई बैठे हुए हैं. They are all honorable members. But when he said कि then in 2002 elections many crooks came back. And I have something to share with you. जी. I'm trying to get hold of that video in Oxford Union जहां पे ये मुकालमा हुआ था मुशर्रफ और कवि मुसावी के दरमियान. Okay. तो आई थिंक के चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसको जाके उन्होंने अदालत में भी कोट किया है कि मुझे पाकिस्तान का सदर इनके बारे में क्या कह रहा है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर. तो सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. इफ इट हैज बिकम एन एविडेंस. अगर मुशर्रफ साहब ऑक्सफोर्ड यूनियन के जो रिकॉर्ड होती हैं चीज वहां पे, अगर उन्हें ऐसी बात कही है और वो कहीं आर्काइव में मौजूद है, आई थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. Yeah, it would be worth to watch, because when a sitting president of the country says that all the crooks are back in the National Assembly after the 2002 elections, it would be an interesting statement. लेकिन coming back to the reputation के साख उनकी होती है जिनकी मतलब साख की वो बात करें जिनकी कोई साख होती है, और उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर जिनकी कोई साख ही नहीं है तो वो मुझे क्या लेके जाएंगे अदालत में. बट आई एम ओपन टू गो टू एनी कोर्ट. वो ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, और उन्होंने उसका रेफरेंस भी दिया कि इससे पहले मुझे कुछ बताया गया था कि कुछ कॉलर जो नो कॉलर आईडीज हैं वहां से उन्हें कॉल्स भी गई कि आपने ये जो कुछ कहा है हमारे लीडर को या क्लाइंट को व्हाटएवर द वर्ड ही यूज के डिफेम करने की कोशिश की है. तो विल बी टेकिंग इट टू द कोर्ट. कल गालबन तारड़ साहब हैं पाकिस्तान में, इनके जो शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करके आए थे. उन्होंने भी कहा कि हम इस पर अता तारड़ साहब हम गौर कर रहे हैं. जी जी हाँ, हम वही तारड़ साहब वही उन्होंने कहा कि हम गौर कर रहे हैं, इस पे भी मुशावरत जारी है. ही जस्ट यूज अ वेरी स्मॉल वर्ड्स. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कर भी थे. लेकिन आई बिलीव इफ दे गो टू द कोर्ट, आई थिंक दे शुड गो टू द कोर्ट. अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली. मिस्टर मुसावी इज रॉन्ग, देन ही शुड बी टेकन टू द क्लीनर इफ ही इज रॉन्ग. बट इफ इज मुझे ये भी डर है कि अगर इनको भी ये डर है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये भी सोच रहे होंगे क्या यार ये इन्वेस्टिगेटर अगर इसके पास क्या सबूत कहीं मौजूद ना हो जो कल को कोर्ट में प्रेजेंट कर दे तो फिर क्या होगा. Exactly. Just imagine फिर क्या होगा. You're very right. Very interesting scenario is building up, and Irfan, the credit goes to you क्योंकि आपने एक बहुत right time पे डिसीजन आया एक कोर्ट का, उसके बाद आपने जो है एक पार्टी के सीईओ से इंटरव्यू किया और वो इतना ज़्यादा हुआ और इट्स आई डोंट सी एनी कंट्रोवर्सी इन इट. लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार की जो पंजाबी में हमारे में कहते हैं कि मैं नाश्ते तो मैं 4 वकील मैं नाश्ते खाना है. ही सेड समथिंग लाइक दैट कि भाई वो मतलब मुझे वकील ने कहा फोन वो क्या था जरा. The way he said it in the breakfast, three lawyers in the breakfast before and after, something like that. कुछ उन्होंने ऐसा कहा. यार जिस बंदे की सारी उम्र आर्बिट्रेशन में गुजर, जो बंदा मैक्सिको की करप्ट 3 हुकूमतों से लड़ता हो, वो तो कहता है कि वहां पर तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, तो आप उसे वकीलों से क्या डराएंगे. अभी हाल ही में
पाकिस्तान ने 17 साल बाद एक केस हार दिया. Whoever is responsible, NAB is responsible, Noon League is responsible, Pakistan People's Party is responsible, कोई भी रिस्पॉन्सिबल है यार. केस हमारे whatever the grounds were, तो आप उसको डरा रहे हैं एक डेफेमेशन से. आई थिंक इट्स नॉट अ फेयर फील्ड. मतलब ये कुछ बाद में मुझे तो कम से कम हजम नहीं होती, लेकिन उन्हें वकील जो हैं वो नाश्ते से पहले भी और बाद में भी जो है वो इस पोजीशन में है कि वो. अच्छा, आई थॉट कि दिस वाज ओनली अ पंजाबी नोशन कि मैं ते नाश्ते पहले भी अन्य बंदे खा जाना है ते बाद भी. तो बट व्हेन यू नो हियरिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज सिटिंग इन लंदन एंड हैज गॉट अ कैरियर of litigation and going through all these processes and studied and whatever what not, और वहाँ से वो आया कि मैं तो भाई नाश्ते में 4 वकील सुबह भी खाता हूँ और नाश्ते के बाद भी खाता हूँ. इट वाज एन इंटरेस्टिंग. बिल्कुल. लास्टली जो आज कोई आपने अभी कुछ चीज़ें जो आपने मज़ीद जो ब्रेक करनी है डेफिनेटली मज़ीद इंटरव्यूज़, तो आप अब अदर साइड का भी कुछ इंटरव्यूज़ करेंगे कुछ? आर यू ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द लॉयर्स हु एक्चुअली लॉस्ट द केस फ्रॉम पाकिस्तान साइड? I think the lawyers are bound by the contract. They are not allowed to speak to the media unless उनका client उन्हें जो है वो इंस्ट्रक्ट नहीं इस हवाले से करता, अलाउ नहीं करता. दूसरी बात ये है कि जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो वो हमेशा की तरह आई यूज्ड टू गो टू एवन फील्ड एंड हसन ऑफिस ऑल द टाइम, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसका आंसर नहीं आता. तो आई थिंक वहां पे खड़े होकर लेकिन ये जरूर है कि जवाब आपको मिल जाएगा. आपको लेफ्ट राइट इनके देखना पड़ेगा, ट्विटर अकाउंट्स के जो इनके लेफ्ट राइट हैं, यू विल गेट द आंसर. बट विश यू ऑल द बेस्ट इरफान. थैंक यू वेरी मच नाज़रीन. अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.